Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Okay, so what we did in the last class? Yes, a very good afternoon to all of you. What we did in the last class? Yes. What we did in the last lecture? सिग्नल्स के बारे में पढ़े मैंने. Okay, Hardware, software, signals, correct. Hardware, software. Other than System that, what software. we did? Yes. Input and output devices. Input output devices, correct. Very good. Then, Inside the program, sorry. in processing of program, Sorry. Pre processing of program, processing of program, computer and programmer we discussed like steps to accomplish any of the program. Yes. Then what we did? computer operation, Computer operations. Okay, what are the computer operations then? input output, Okay. processing, Okay, fine. Then what else other than this? What we discussed? arithmetic operation, Sorry. System application. System, yes. Types of softwares we discussed, correct? Which two types of softwares we discussed? system software or application software. Okay, right. System software and application software. Other than that, we discussed about few of the characteristics of computer as well, if you remember. And which are those characteristics? Storage, Okay, correct. reliability, Storage, then speed, reliability, yes, speed, then reliability, then accuracy, yes, Signal. accuracy. Accuracy, speed, reliability, and storage. These are the few characteristics of our computer. Correct. Very good. Other than this, we discussed about the types of signals as well. There are basically how many types of signals do we have? Two types. two Okay. types. What are those two? digital, Analog and digital. Very good. Then we discussed about some of the Internal hardware. storage and external storage. Internal storage and external storage, correct. Very good. Now what's the difference in between these two types of storage? Yes. External storage is a movable. Okay, external storage is a movable, correct. Very good. Other than that, what's the difference in between these two? Portable device. सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं. Okay, security. Then what else? Portable. Portable hai, correct. As it's movable, it's portable. Yes, very good. Then External storage are give extra storage. extra storage, yes, there is no limitation for that, whereas in internal storage there are certain few limitations, fine. Whereas when we are talking about external storage, there is no limitation as such, fine. Then when we discussed about speed, what do you mean by speed over here? Speed is a characteristic of a computer. What's the speed, or what's the measurements of speed over here? Gigahertz, Gigahertz and megahertz. Now why it's in hertz? signals की वजह से, Why? Because of signal. signals hertz में सिग्नल का यहाँ पे डेटा आपका किस में ट्रेवल करने वाला है? इन फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, और सिग्नल किस में रहेंगे जैसा आपने बताया अभी? हर्ट्स में. सो दैट्स द रीजन यहाँ पे हम गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज के अंदर हमारे मेजरिंग यूनिट्स रहेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीड. ओके, यहाँ पे जो भी हम डेटा या कुछ भी transmit करेंगे from one particular component of our
our computer to another component of our computer, तो वो कौन से तरह से कर सकते हैं हम, मतलब कि वायरलेस या फिर वायर्ड डिवाइस से, कैसे कम्युनिकेशन मीडियम से आप ट्रांसफर कर सकते हो? यूएसबी केबल। बोथ आर देयर। आप यहाँ पे मतलब कि आपका सी इंटरनली हम कर रहे हैं, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर भी अगर डेटा ट्रैवल कर रहा है तो वो केबल की मदद से, सिग्नल की मदद से होता है। अगर हमारे मतलब बाहर अगर सेपरेटली हमारे पास सपोज माउस है या फिर कीबोर्ड है, तो वहां पे हम यूएसबी जो केबल है उसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, या फिर अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर इंटरनली सिस्टम अटैच होगा, कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो वायर्ड एंड वायरलेस दोनों तरीके से हम यहाँ पे कनेक्शन में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पर दोनों केस के अंदर कैसे रहेगा, डेटा किस में ट्रांसमिट होने वाला है, इन टर्म्स ऑफ सिग्नल्स ओनली। देन रिलायबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी? Yes. परफेक्ट आंसर मिलता है। Perfect answer मिलता है, okay. Other than that, how you can explain it? Any of your example? कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो तो ह्यूमन से कर सकते हो। सी रिलायबिलिटी डज मीन्स व्हाट, हमने कल भी डिस्कस किया था कि सपोज अगर ह्यूमन टेंडेंसी की बात करें, एज अ ह्यूमन, इफ द पर्सन इज नॉट इन अ लाइक गुड मूड और नॉट फ्रेश, और आप अगर सो के बस अभी उठे ही हो और आपको अगर कुछ लिखने के लिए बोला जाए तो शायद से आपसे कोई गलती हो सकती है, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक या फिर स्टेटमेंट हमारा फॉर्मेशन कुछ गलत हो सकता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ हो सकती है, तो वो हमसे हो सकता है। लेकिन व्हेन कम्स टू सिस्टम कंप्यूटर, तो वो 24/7 आप जब भी बिना थके हारे जब भी हम वहां पे जाएंगे, वर्ड आप खोलोगे, वर्ड के अंदर टाइपिंग शुरू करोगे, जहां पे भी गलती होगा वो इमीडिएटली वहां पे रेड मार्क दिखाने लगता है। मतलब कि स्टेटमेंट फॉर्मेशन में कुछ गलती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग चेकर होता है, वो ऑल टाइम मतलब कंटिन्यूअसली वो वर्क करता रहता है। फाइन। तो दैट्स द रिलायबिलिटी कि कोई भी केस में, कोई भी सिचुएशन के अंदर इट विल परफॉर्म वर्क फॉर अस, एंड दैट टू विद वेरी मच एक्यूरेसी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी? परफेक्ट राइट आंसर मिलता है 100%। ओके करेक्ट, मतलब बिल्कुल प्रिसीजन में हमें आंसर मिलता है जो होना चाहिए वो, ऐसा कुछ राउंड अबाउट करके, जैसे हमारा केस होता है तो हम थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे होके पूरा हमारा आंसर गलत हो सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू सिस्टम तो वो नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट। ओके, सिस्टम के अंदर डेटा कौन से सिग्नल में ट्रांसमिट होता है? डिजिटल। ओके, एंड डिजिटल कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी। ओके, Binary. मींस योर जीरोस एंड वंस। अगर हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल की, तो हाउ डू वी एनालॉग सिग्नल्स कैन बी, एनालॉग सिग्नल्स कैसे होते हैं? इट विल कीप चेंजिंग। Conformation. हाँ, कंटिन्यूअसली वो चेंज होते रहते हैं। उसके अंदर हमने बात भी किया था, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हम अगर उसे देखें तो कंटिन्यूअसली उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ऊपर नीचे या फिर कैसे भी, मतलब राइट लेफ्ट कैसे भी उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। इट वोंट बी कांस्टेंट, बट इट विल कंटिन्यूअसली चेंज इट्स द सिग्नल। फाइन। तो दैट्स योर एनालॉग सिग्नल। डिजिटल सिग्नल मेड अप ऑफ योर बाइनरी जीरोस एंड वंस। से फॉर एग्जाम्पल नंबर्स है तो नंबर को तो बाइनरी में करना हमें आता है, दैट्स गुड। बट अगर यहाँ पे टेक्स्ट है, मतलब कि कोई स्टेटमेंट है, सेंटेंस है, वर्ड है, कैरेक्टर है, लेटर है, तो उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा बाइनरी में? Binary conversion से. हाँ, बट बाइनरी कन्वर्जन क्या हम यूज करेंगे उसके लिए? वी डिस्कस्ड इट यस्टरडे। मशीन लैंग्वेज। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। वी आर गोइंग टू यूज द मशीन लैंग्वेज फॉर दैट। हमने बात भी किया था मशीन लैंग्वेज का, हमारे इसका किसका, गूगल असिस्टेंट्स का हमने बात किया था। सीरी ले लो, गूगल असिस्टेंट्स ले लो, अलेक्सा ले लो, तो ये सारे जो है वहां पे मशीन लैंग्वेज यूज किया जाता है, ठीक है। तो सेम वे जो भी हम
human understandable language to computer understandable language, again computer understandable language मतलब कि binary to human understandable language. That's the major role of our this machine language. Fine. Okay, then we discussed about types of softwares. अभी आपने जैसे बताया कि application software and system software. Now what's the difference in between these two types of softwares? सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हमें कोई प्रोग्राम रन करना है तो वो सिस्टम में होना चाहिए, और एप्लीकेशन में ये कंपलसरी नहीं है, ऐसे भी रन हो सकता है। ओके राधा, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम्पल आपको दे सकते हो? Anyone? उबंटू आता है ना, उबंटू। हाँ, उबंटू क्या, कौन सा एग्जाम्पल है उबंटू? वो हम सॉफ्टवेयर की जगह इंस्टॉल करते हैं, वो इसी जगह उबंटू चलेगा ना। हाँ नहीं नहीं अनंत, ओएस सही है। वो कौन से टाइप का कौन से टाइप का वो एग्जाम्पल है, मतलब कि इट फॉल्स अंडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इट फॉल्स अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम। Correct, system software, very good. Now सिस्टम सॉफ्टवेयर। other than this कौन से और examples है system softwares के? लिनक्स। Linux, okay, that is, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज। हाँ बिल्कुल, Windows का विंडोज। फिर right, in a way all the operating systems comes under our system software category. Fine. Other than operating systems, which other things falls under system softwares? ड्राइवर्स। ड्राइवर्स, करेक्ट, जो हमने ड्राइवर्स के बारे में कल बात किया था. सो ऑल दिस ड्राइवर्स अगेन कम्स अंडर, falls under the system software. When we talk about application software, so which are the application softwares do we have? वेब ब्राउजर। Okay, yes, web browsers. Then मीडिया प्लेयर। yes, editors, all are editors. Then all are Microsoft Office applications. फोटो व्यूअर। Games you all are playing. फॉक्स। हाँ बिल्कुल, all the web browsers, that is Firefox, इंटर आई आ गया, देन कौन सा है दूसरा हमारा, ये क्रोम. तो हाँ बिल्कुल, ये सारी की सारी चीजें जाएगी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. अदर देन दिस, व्हाट्स द डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू थिंग्स? और क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू बी प्री कोडेड, वो पहले से कोडेड रहता है. जो मैन्युफैक्चरर जो है वो हमें कैंड प्रोडक्ट में मिलता है, मतलब कि जो पैक्ड प्रोडक्ट आता है, हमारा लैपटॉप आता है, सिस्टम आता है, उसमें पैक्ड प्रोडक्ट के अंदर पैक किया हुआ है प्रोडक्ट, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो आता ही आता है. ठीक है, दैट वो किसने बनाया हुआ है? मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है, और उसके अंदर हमें बाय डिफॉल्ट वो मिलता है. दैट इज द कैंड प्री कोडेड बाय द मैन्युफैक्चरर. फाइन. जब हम बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो उसके फंक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस जो है which are returned by the user or a coder or a programmer, मतलब कि आप प्रोग्राम बनाते हो, that is nothing but the application software. fine. तो और जो हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिसका हम यूज कर रहे हैं, तो वो हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, अभी ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इन दोनों के बीच में अगर हम और कुछ डिफरेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनी आइडिया यू आर हैविंग, और कोई डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू थिंग्स? मैम, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम शेयर नहीं कर सकते। सॉरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम शेयर नहीं कर सकते। सेव, ध्रुवेश, मतलब कि सेव करना, वो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं वो मिलता है. शेयर बोल रहा है। share, हाँ, that we won't be able to share it. Yeah, we won't be able to share it, but whereas application software we can share it. Very good, Dhruvesh. I'm sorry, मैंने थोड़ा सा कुछ नहीं, मैंने ठीक से सुना था. Okay, so basically all these things we did in the last class and you people are pro in it. I guess आपको सारा कुछ बहुत अच्छे से याद है. अभी हम देखते हैं next for a day what we are going to do. Just a minute. Let me share my screen first.
Okay, is it visible to all of you? I have shared my screen. Yes, ma'am. Okay, fine, perfect. So, okay, is diagram visible to you? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. so basically, okay, this we did till this in the last class. That's about signal, analog and digital signals. Now, this is about the layers in our system, layers in our computer system. Now, these are the few layers in the very मतलब inner layer जो है वो है हमारे हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर आते हैं हमारे BIOS। बायस का मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिक इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, इज योर BIOS, मतलब BIOS, दैट्स द बेसिक इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम। फाइन। अभी ये जो हमारे इनपुट आउटपुट कंट्रोल सिस्टम है, इसकी मदद से हम ये हार्डवेयर का यूज करेंगे। अभी ये दोनों चीजों का यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सॉफ्टवेयर की। और वो सॉफ्टवेयर हमें कौन प्रोवाइड करेगा? आर ऑपरेटिंग सिस्टम, द कंपाइलर। तो वो हमारा उसके बाद वाला लेयर हो गया। उसके बाद में ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, पर उसका यूज करने के लिए हमारे पास अंदर कोई एप्लीकेशन भी तो होनी चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है पर आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, then will you be able to use that internet connectivity? Of course not. Fine. तो उसके लिए यहाँ हमारे पास सिस्टम है, हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, पर उसके वो यूज करने के लिए हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, देन हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट? सो दैट्स व्हाई नेक्स्ट वी वांट यूजर एप्लीकेशन। यूजर एप्लीकेशन आएंगे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर जाएगा हमारे इनपुट आउटपुट की हेल्प से हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। तो दीज आर द लेयर्स ऑफ द कंप्यूटर, लेयर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम। इज दिस क्लियर विथ यू? वेरी सिंपल। Yes? Yes, हाँ, ma'am. Mona, say something. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next Okay. is about our computer organization. Now see, when we are talking about our computer organization, तो सबसे पहले उसके अंदर आता है हमारा ओके डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा इनपुट। इनपुट जाएगा हमारे मेमोरी के अंदर। उसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ CPU वी आर गोइंग टू प्रोसेस दैट पर्टिकुलर इनपुट। प्रोसेसिंग हो जाएगा इनपुट के ऊपर, मेमोरी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो गया और दे देगी हमें आउटपुट, ठीक है। तो दिस इज हाउ इन जनरल आवर सिस्टम वर्क्स। फाइन। तो ये हमारा इन नॉर्मल इन जनरल सेंस हो गया। अभी आप यहाँ पे जानते हो कि कैसे हमारे ये CPU वर्क करता है, दैट वी ऑल नो, राइट? आप सीख चुके हो ना, राइट? आपको पता है हाउ द CPU वर्क, types of memory, input output, regarding all these things you are all aware, right? Yes, ma'am. Okay, so input devices की बात करें तो what's the role of input device? Keyboard Yes, and mouse. the first input device. Yes, keyboard and mouse are the example of our input device, right? Very good, correct. Now what's the role of input device? Input device का role क्या है? What input device will do for us? Give the command of user. Patience. Okay, so basically it will accept the data. फाइन, वो यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है, भले ही वो डबल क्लिक हमने किया हो माउस की हेल्प से, या फिर हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ डेटा फिल किया हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, या फिर आपने एंटर प्रेस किया हो। तो ये सारी चीजें हो गई हमारी इनपुट के अंदर, ठीक है। सो इनपुट बेसिकली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर फॉर द कंप्यूटर। उसके बाद में वो कहाँ पे जाएगा? हमारे मेमोरी में जाएगा। उसके ऊपर कौन वर्क करता है? CPU वर्क करेगा, दैट्स आवर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसे और हम क्या बोल सकते हैं? कैन वी कॉल इट एज अ हार्ट ऑफ आवर सिस्टम? सिस्टम का हार्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या बोल सकते हैं? या फिर हम ब्रेन बोल सकते हैं, इट्स अ ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम। Yes, ma'am. Of Fine. course. हाँ, so basically this is the component that actually executes all our instructions। जो हमने यहाँ पे input के टाइम पे बोला था, suppose input के टाइम पे हमने दिया है यहाँ पे integer a equal to 10, b equal to 20। अब जाके यहाँ पे ये मेमोरी में आ
गया है, हमें उसके ऊपर परफॉर्म करना है एडिशन, हमें प्लस करना है a प्लस b, तो 30 मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू का रोल क्या हो जाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का टास्क जाएगा हमारे सीपीयू के पास में। मेमोरी के पास क्या जाएगा, ए और बी की वैल्यू जाएगी, ठीक है। किसके पास, मेमोरी के पास, वो यहाँ पे देगा सीपीयू को। सीपीयू क्या परफॉर्म करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा, रिप्लाई क्या देगा, 10 प्लस 20 30 रिप्लाई देगा, यहाँ पे मेमोरी में स्टोर भी हो जाएगा और वो आपको आउटपुट में दिखेगा। नाउ इट कम्स टू आउटपुट डिवाइस। सो आउटपुट डिवाइस बेसिकली क्या करता है, इट विल प्रोड्यूस आउटपुट फॉर अस। आउटपुट कैन बी ऑफ एनी टाइप, मतलब कि इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन टू योर स्क्रीन, it can also be printed onto the paper with the help of a printer, or it can be hear from a person by the by speakers as well, fine। एज इन गूगल असिस्टेंस है, तो गूगल असिस्टेंस में हम बोलते हैं सब कुछ भी, ठीक है। तो उसका हमें क्या मिलता है वहां पे, आउटपुट में वो वहां पे बोलता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्पीकर कैन वी हियर इट आउट, राइट, या फिर ईयरफोन की मदद से हम सुन सकते हैं, तो वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। सो वो आउटपुट हुआ इन अ वे। तो आर वी कंफर्टेबल विद दिस इनपुट सीपीयू एंड आउटपुट एंड मेमोरी, राइट। सो मेमोरी क्या करता है, इट विल एक्चुअली इनेबल्स अ कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स टुगेदर। यहाँ पे डेटा एंड प्रोग्राम्स मैंने सेपरेटली बोला है, ठीक है। देयर आर सर्टेन आर्किटेक्चर्स जहाँ पे डेटा एंड हमारा जो प्रोग्राम है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन है, वो सेपरेटली स्टोर होती है, और कई जगह पे मेन मेमोरी के अंदर साथ में स्टोर होती है। ये हम जानते हैं ना कि डेटा इज अ सेपरेट थिंग एंड इंस्ट्रक्शन इज अ सेपरेट थिंग, दैट वी ऑल नो, राइट। यस सर। डेटा क्या हो गया, इंटीजर a इक्वल टू 10, इंटीजर b इक्वल टू 20 इज योर डेटा। पर a प्लस बी 30 हमें मिलना चाहिए, वो क्या हो गया, a प्लस बी इज योर प्रोग्राम, योर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जो है वो सेपरेटली स्टोर होती है कई जगह पे डेटा कंपल्सरी कंप्लीटली सेपरेटली स्टोर होता है। बट देयर आर द केसेस जहाँ पे साथ में स्टोर होता है, तो वो भी हम देखेंगे कि कौन सा आर्किटेक्चर के अंदर साथ में स्टोर होता है। ओके, सो बेसिकली ये जो हमारा मेमोरी है वो डेटा एंड प्रोग्राम को सेव करता है। इट ऑल्सो यू नो allow our system to permanently retain large amount of data, that is आप मूवी स्टोर करते हो अपने सिस्टम में, सॉन्ग सेव करते हो, कुछ प्रोजेक्ट सेव करते हो, गेम्स अपने सेव करते हो, या फिर अपने जो कुछ प्रोग्राम्स किए हुए हैं वो सेव करते हो, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन सेव ऑन टू आवर मेमोरी। तो दिस इज ऑल अबाउट आर ये डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जो बहुत ही बेसिक सा डायग्राम है उसके बारे में हो गया। आर वी कंफर्टेबल विद दिस थिंग? Yes, ma'am. Okay, now next this is a little in a brief little detailed diagram of the same। पहले का जो था बिल्कुल वैसे का वैसा है, इनपुट है, मेमोरी है, आउटपुट है, सीपीयू है, बट now we have divided our CPU into two parts, that's the control unit and ALU, that is our arithmetic and logic unit। okay, अभी यहाँ पे ये दोनों का टास्क क्या होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द रोल ऑफ योर कंट्रोल यूनिट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट? बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जो डायग्राम है वो छोटा सा, मतलब थोड़ा सा अधूरा है। इसके अंदर साथ में होता है रजिस्टर, आपको शायद से पता होगा, साथ में रजिस्टर्स भी आते हैं, ये आइडिया है? हाँ, तो वो रजिस्टर्स भी साथ में आते हैं। तो थोड़ा सा ये डायग्राम जो है, एक्चुअल में आपको सिलेबस में यही डायग्राम फॉलो करना है, बट अगर आप रजिस्टर्स डालोगे तो कोई आपको ज्यादा ही शायद से मार्क देगा, कम नहीं देगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पे साथ में रजिस्टर भी आता है, इसी के साथ में कंट्रोल सीयू एंड एएलयू के साथ में यहाँ पे एक रजिस्टर भी होता है। ओके, तो नाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस फॉर मी? आप एक्सप्लेन कर पाओगे इसे? आप सारा जानते हो, कंट्रोल यूनिट जानते हो, एएलयू जानते हो, इनपुट, मेमोरी, आउटपुट, सारी चीजें जानते हो। I want you to explain it. Can anyone explain it? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट में अरिथमेटिकल प्लस माइनस जैसा कैलकुलेशन होता है, और लॉजिकल कंपैरिजन और ऐसा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है। Okay. और कंट्रोल यूनिट में नॉर्मल इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होते हैं, दैट सेव एक। Okay. मैम कंट्रोल यूनिट में डायरेक्ट ऑपरेशन होता है प्रोसेसर से। Okay. Anything else?
यस बोलो बोलो। ओके सी, हम छोटा सा ये जो डायग्राम हमारा था ना उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं और बना रहे हैं बेसिकली। ओके do we have two-way arrows over here? No. थोड़ा सा इसे समझ लेना फाइन। ओके अभी ये हमारा क्या होगा यहाँ पे अज्यूम करके तो बताओ। मेमोरी। हाँ बिल्कुल, दिस इज आवर मेन मेमोरी हो गई हमारी यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारा? CPU. करेक्ट। ओके ओके, सीपीयू के अंदर ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा हमारा? सपोज रजिस्टर्स डाल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो सकता है? कंट्रोल। हाँ गुड। और ये हो गया हमारा हम्म ओके। अब ये क्या होगा हमारा? आउटपुट। इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हो गया हमारा एक सिंपल सा डायग्राम। अभी हम इसे समझते हैं क्योंकि यहाँ पे सी हमने रजिस्टर वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए समझना। अब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं यहाँ पे। तो मेन मेमोरी जो है वो कैसे रहेगा? इट विल बी डिवाइडेड फाइन इनटू टू थिंग्स। यहाँ पे साथ में भी हो सकता है या फिर डिवाइडेड भी हो सकता है। तो इन अ वे सपोज मान लेते हैं इतना पोर्शन और इतना पोर्शन। यहाँ पे ये हो गया हमारा डेटा है और ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शंस। फाइन। सो डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस दोनों की दोनों चीजें यहाँ पे क्या रहेगी? साथ में रहेगी। किसके अंदर? हमारे मेन मेमोरी के अंदर। फाइन। ओके, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। फाइन। अभी वो हो गया। तो डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दोनों साथ में रहे तो क्या एडवांटेज है और सेपरेट रहे तो क्या एडवांटेज रहेगा? आप मुझे बताओ। डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दोनों के दोनों साथ में हैं या फिर दोनों के दोनों सेपरेट है, क्या रहेगा केस?
अभी दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ना हमारा, इसे हम बोलते हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बोलते हैं इससे, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम भी बोल सकते हैं हम इसको। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस आर्किटेक्चर। तो ये हो गया हमारा स्टोर्ड मेमोरी प्रोग्राम या फिर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने बात किया कि सपोज हमारा यहाँ पे ये मेन मेमोरी है जिसके अंदर जाएगा हमारा डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो डेटा क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द डेटा दैट इंटीजर a b c, नाउ a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। ये है हमारा डेटा। अब यहाँ पे हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो मेरे इंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, यू हेल्प मी। इंस्ट्रक्शन क्या होगी यहाँ पे हमारे लिए, व्हाट विल बी कंसीडर्ड एज। हाँ बिल्कुल, A is equals to A plus B. हाँ वेरी गुड, करेक्ट। तो यहाँ पे ये हो गया डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों की दोनों चीजें कहाँ पे रहेगी, मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, साथ में रहेगी। हाँ ऐसा हो सकता है कि हमारा इंटीजर ए है, वो नंबर एड्रेस 2000 मेमोरी लोकेशन पे है और हमारा मतलब वहां से हमारा डेटा है, और इंस्ट्रक्शंस जो हमारी शुरू हो रही है वो सपोज शुरू हो रही है कि 5000 मेमोरी से, 5000 एड्रेस से, ठीक है। तो वो अलग अलग हो सकता है, बट दोनों की दोनों चीजें रहेगी हमारी मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है। ये एक चीज तो हो गई। अब दूसरा यहाँ पे क्या आता है, हमारा मेन मेमोरी का हो गया है। अब आती है बारी हमारी सीपीयू की। तो सीपीयू क्या है, बेसिकली वो हमारी मेमोरी के अंदर, मतलब कि हमारा एक कंपोनेंट है जो हमें इनपुट आउटपुट जो है वो प्रोसेस करने में हेल्प करता है। दैट्स आर सीपीयू, दैट्स आर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फाइन। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है हमारा, इसके अंदर आता है सबसे पहले हमारा एएलयू। एएलयू का अभी आपने किसी ने बोला, मुझे याद नहीं है किसने बोला, पर किसने बोला यहाँ पे ये हमें क्या अलाउ करता है, इट विल गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द सर्किट्स। यहाँ पे क्या होता है, एएलयू के ऊपर बहुत सारी सर्किट्स लगी हुई होती हैं, और ये जो सारी सर्किट्स है वो हमें अलाउ करती है, इट विल लेट अस परफॉर्म ऑल दिस कैलकुलेशंस या फिर कंपैरिजन। फाइन। तो वो सर्किट्स की मदद से हम यहाँ पे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। दैट यू शुड नो। आगे से ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना कि विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किट्स वी कैन परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशंस। तो क्या हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मतलब कि हमारा प्लस हो गया, माइनस हो गया, हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिविजन हो गया, ठीक है। या फिर हो सकते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस, मतलब कि हमारा एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, शिफ्ट भी होता है। Comparison. हाँ शिफ्ट हो गया, देन यहाँ कंपैरिजन आ जाएगा। इक्वल टू में डाल देती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। इक्वल टू या फिर डबल इक्वल टू, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे एएलयू के अंदर परफॉर्म होंगे। किसकी मदद से परफॉर्म होंगे, करेक्ट, सर्किट्स की मदद से ये परफॉर्म होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारे एएलयू के बारे में। अभी नेक्स्ट आता है बारी हमारे रजिस्टर्स के बारे में। अभी रजिस्टर्स के बारे में हम क्या जानते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्स। रजिस्टर्स हैं क्या Types बेसिकली, of computer memory. सॉरी, टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, करेक्ट। ये कौन सी टाइप का मेमोरी है, टेम्पररी स्टोरेज, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, इट्स अ टेम्पररी स्टोरेज। सॉरी, प्रोसेसर्स में होता है रजिस्टर। ओके, ये सबसे ज्यादा इन अ वे फास्टेस्ट मेमोरी है। फर्स्टली ये पहली बात कि ये फास्टेस्ट मेमोरी है। दूसरी बात ये टेम्पररी मेमोरी है जो कि अभी आपने बताया। एंड तीसरी बात ये हमारी बहुत ही ज्यादा कम मेमोरी है, मतलब कि ये बहुत ज्यादा अनलिमिटेड मेमोरी नहीं होता है यहाँ पे, ये बहुत कम मेमोरी होता है, मतलब कि बहुत ही हमारे पास लिमिटेड मेमोरी रहने वाला है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्स, ठीक है। सो क्या क्या हुआ, टेम्पररी है पहले तो, दूसरा ये फास्टेस्ट मेमोरी है, तीसरा ये हमारा लिमिटेड मेमोरी, मतलब कि स्मॉलेस्ट मेमोरी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। नाउ यू टेल मी क्या क्या हमने डिस्कस किया। फर्स्टली
ये रजिस्टर्स के बारे में बताओ तो मुझे। smallest, ओके, स्मॉलेस्ट मेमोरी, सेकेंडली fastest, temporary memory, Temporary memory. हाँ temporary, टेम्पररी मेमोरी। अदर देन दिस, जब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट मतलब कितना स्मॉलेस्ट होगा, मतलब कि सॉर्ट ऑफ हमारा 8 बिट का है या फिर 16 बिट का है सपोज, मतलब कि सपोज 8 बिट्स की हम बात करें तो 8 बिट्स मतलब कितना हो जाएगा, 1 बाइट हो गया हमारा, या फिर 16 बिट्स एंड 2 बाइट का, 2 बाइट्स का, तो मतलब इतनी छोटी ये हमारी मेमोरी रहती है, ठीक है। सो दैट स्मॉलेस्ट मेमोरी इट यूज टू बी। नाउ ये बेसिकली मेमोरी बनती कैसे है, मतलब हाउ द वे दिस मेमोरी विल बी, ये मेमोरी किस तरह से होती है, बिट्स में होती है, इतना तो समझ आ गया ना हमें। यस, बिट्स में होती है, ये मतलब कि 1 बाइट हो गया बिट्स में हुई, मतलब कि तो हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव बिट्स। मैम, दिस रजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बिट्स, मतलब कि एक साथ बहुत सारे बिट्स मिला के ये हमारा रजिस्टर बनता है। कैन वी से सो, या फिर सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप से बोल सकता है इसको। मतलब बिट्स क्या हुआ, बिट्स किस में होता है, जीरोस एंड वंस में होता है। कैन आई कॉल दिस एज अ बिट्स, sequence of bits, can I say so? yes ma'am, ओके, तो ये जीरोस एंड वंस क्या हो गए, मतलब कि हमारे बिट्स हो गए, ठीक है। अभी ये बहुत सारे बिट्स मिलके हमारा ये रजिस्टर बनता है। तो ये जो बिट्स हैं, तो बिट्स ही हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं, फ्लिप फ्लॉप्स मतलब ऑन ऑफ, मतलब कि ये जीरोस वंस, तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ द yes फ्लिप ma'am, फ्लॉप्स। फाइन, तो इसे हम सीक्वेंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स बोल सकते हैं या फिर सीक्वेंस ऑफ बिट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना। तो फोर्थ हमारा क्या हो गया, इट्स sequence of bits और फ्लिप फ्लॉप्स। फाइन, तो इतनी चीजें हैं जो कि है हमारे रजिस्टर्स के बारे में। फाइन, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो नाउ यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय दिस कंट्रोल यूनिट, व्हाट दिस कंट्रोल यूनिट विल परफॉर्म फॉर अस, व्हाट्स द टास्क ऑफ द कंट्रोल यूनिट। common task, कॉमन टास्क, ओके, कॉमन डज मीन्स व्हाट। save, edit, paste, ओके, अदर देन दैट, हम ब्रॉडर सेंस में देखने जाए तो ये क्या करेगा हमारे लिए, ये कंट्रोल यूनिट, व्हाट विल इट परफॉर्म फॉर अस। कंट्रोल यूनिट में सारी चीजें बेसिकली सिग्नल्स में रहेगी, ठीक है। वैसे तो पूरे सिस्टम में हमारे सिग्नल्स में ही रहता है, बट कंट्रोल यूनिट में स्पेसिफिकली यहाँ पे 2 टाइप्स के सिग्नल्स रहेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, कौन से रहेंगे। digital oriented, नो, इट विल बी सी टाइमिंग सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल होता है और कंट्रोलिंग सिग्नल होता है। अब ये टाइमिंग सिग्नल क्या है, कंट्रोल सिग्नल क्या है, अब आपको कुछ आइडिया है टाइमिंग सिग्नल के बारे में। नो मैम। ओके, सी सपोज ये है हमारा टाइमिंग सिग्नल के बारे में बात करते हैं। टाइमिंग सिग्नल के अंदर हम जब भी बात करें तो सपोज हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक कोड है हमारा जिसके अंदर बहुत सारी सपोज 10 इंस्ट्रक्शंस हैं। मतलब कि क्या हो गया, I1 इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, यहाँ पे आया हमारा इंस्ट्रक्शन 10, टोटल 10 इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, ठीक है। एक प्रोग्राम पी के अंदर, प्रोग्राम P1 है, उसमें ये 10 इंस्ट्रक्शंस है। अभी ये टाइमिंग सिग्नल क्या बोलता है कि विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट फर्स्ट इन अ प्रोग्राम एंड विच इंस्ट्रक्शन इज टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट इन द प्रोग्राम, मतलब कौन से इंस्ट्रक्शन का कौन सा यहाँ पे सीक्वेंस रहेगा, वो हमारा टाइमिंग सिग्नल है, वो डिसाइड करता है। आप मान लो कि अगर आपने सी का ही कोई प्रोग्राम बनाया है, इसमें अगर कुछ इंस्ट्रक्शन ऊपर नीचे हो गई तो क्या उसे वो समझ पाएगा। सपोज आपने सबसे पहले ऐसा प्रिंट एफ कर दिया है कि प्रिंट एफ दिस एंड दैट, फिर स्कैन एफ किया आपने, और स्कैन एफ के अंदर आप एम्परसेंड डी ले रहे हो और साथ में लिया है एन, मतलब परसेंटेज डी लिया और एम्परसेंड एन लिया है, जबकि एन अभी तक आपने कहीं पे डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो क्या वो चलेगा। No, ma'am.
नहीं चलेगा, राइट। तो दैट वे कि यहाँ पे कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले आनी चाहिए। अगर हमारा जो सी है, टर्बो सी है, उसने ये इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या चलेगा, वो वर्क करेगा, नहीं करेगा, हमें वो एरर देने वाला है। तो ये हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसका टाइमिंग सिग्नल है, वो ये बताता है कि विच इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट व्हेन, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज बीन डिसाइड बाय टाइमिंग सिग्नल। सेम वे अगर आप कैलकुलेटर के बारे में बात करते हैं तो सपोज ऐसा है 10 प्लस 20 इंटू 2। आइडियली इसका आंसर क्या आना चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर? 50। हाँ 50 होना चाहिए, फाइन। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे इसने ठीक से एग्जीक्यूट नहीं किया तो क्या करेगा ये? 20 प्लस 10 30 करेगा, 30 इंटू 2 करके यहाँ पे 60 हमें आउटपुट देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। ओके, सो Yes, ma'am. इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि कब एग्जीक्यूट होना चाहिए वो बताएगा हमारा टाइमिंग सिग्नल। अब हो गया ये टाइमिंग सिग्नल के बारे में। दूसरा हमारा होता है दैट्स द कंट्रोल सिग्नल। दैट्स अ कंट्रोल सिग्नल, फाइन। कंट्रोल सिग्नल की बात करें तो कंट्रोल सिग्नल क्या बताता है? इट विल कंट्रोल द रजिस्टर। ये हमारे जो रजिस्टर्स हैं इसको ये कंट्रोल करता है। जो कि अभी किसी ने बोला कि सेव करना है या फिर फाइल्स को कहाँ पे रखना है, क्या करना है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स के साथ कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, वो सारा टास्क जो होगा वो परफॉर्म होगा विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोल सिग्नल। तो कंट्रोल सिग्नल बेसिकली क्या करेगा? इट विल कंट्रोल्स द रजिस्टर्स। वो रजिस्टर्स को कंट्रोल करने का हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। रजिस्टर्स कौन से होते हैं, किसी को आइडिया है? प्रोग्राम काउंटर है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं। ये सारे रजिस्टर्स को कंट्रोल करने का टास्क कौन करेगा? हमारा कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल सिग्नल। ओके, अभी यहाँ पे एक बात है कि हमारे पास जब मेन मेमोरी है, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन कि हमारे पास मेन मेमोरी है, वी आर हैविंग सम मेमोरी, देन व्हाई डू वी नीड टू हैव रजिस्टर्स ऑन आवर सीपीयू? सीपीयू के ऊपर रजिस्टर्स रखने की नीड क्या है? व्हाई डू वी नीड इट? जरूरत ही क्या है जब हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी है? डुप्लीकेशन की क्या जरूरत है? व्हाट्स द नीड ऑफ दिस रजिस्टर्स? Transfer data. सॉरी, Transfer data. ट्रांसफर डेटा। रजिस्टर्स बेसिकली क्या करता है? रजिस्टर में क्या होगा? मेमोरी होगा। रजिस्टर्स आर नथिंग बट द मेमोरी, ठीक है। अब वो जो मेमोरी है तो मेमोरी को हमें डुप्लीकेट करने का जरूरत क्या है? ये हमने बात किया रजिस्टर के बारे में कि रजिस्टर्स आर नथिंग बट द स्मॉलेस्ट मेमोरी एंड फास्टेस्ट मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, सीक्वेंस ऑफ बिट्स, फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये हो गया हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर जब मेन मेमोरी है, हमारे पास बहुत सारी मेमोरी है, तो रजिस्टर की जरूरत क्या है? रजिस्टर में भी मेमोरी है, दो मेमोरी का क्या करेंगे हम? व्हाई डू वी नीड दिस रजिस्टर्स एज वेल, दैट टू ऑन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर। ये हमें मेन मेमोरी की, सॉरी, रजिस्टर की जरूरत क्या है? यस, ओके। ये जो हमारा रजिस्टर है वो अब भी हमने बात किया कि ये है स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, टेम्पररी। तो यहाँ पे कीवर्ड है फास्टेस्ट, हमें स्पीड की जरूरत है तो इसके लिए हमें जाना चाहिए रजिस्टर्स के पास में। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ये हमारे डेटा की, इंटीजर ए बी सी इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20, सी इक्वल टू आंसर, मतलब आउटपुट शुड बी आर 30। तो 30 जो है वो आउटपुट हम यहाँ पे मेन मेमोरी में जाके देंगे। उसकी जगह पे अगर रजिस्टर्स में ही पड़ा है, हमारी छोटी सी मेमोरी के अंदर पड़ा है, तो क्या विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स हम डायरेक्टली इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर उसे डिस्प्ले कर पाएंगे? विल इट बी फास्टर, विल इट बी स्पीडी वर्क, विल इट बी टेक टू लेस टाइम टू डिस्प्ले इट ऑन टू स्क्रीन? Yes, ma'am. यस, सो दैट इज द थिंग कि आप सीधा है, ये आप सीक्वेंस देखो यहाँ पे, मेन मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके,
यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या हुआ, यहाँ पे a प्लस बी, आंसर आया क्या हमारा 30। तो 30 को हम वापस से यहाँ पे सेव करेंगे, ये सेव होगा, वापस से यहाँ पे आएगा, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगा और अब जाके 30 डिस्प्ले होगा। उसकी जगह पे यहाँ पे 30 मिला है हमें, ओके मिल गया। अब रजिस्टर्स की मदद से यहाँ पे बसेस के साथ ये सारी चीजें कनेक्टेड होगी। विद द हेल्प ऑफ रजिस्टर्स क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे उसे डिस्प्ले कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देन नाउ वी डोंट नीड टू गो हियर टू द मेन मेमोरी, फाइन। तो ये जो हमारा टाइम यहाँ पे जो वेस्ट हो रहा है, मेन मेमोरी में सेव करो, मेन मेमोरी से वापस डेटा आएगा और उसे बाद में जाके यहाँ पे डिस्प्ले करो, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, इट विल सेव्स द टाइम, इट विल बी स्पीडियर, इट विल बी फास्टर एज वेल, फाइन। तो वो हमें स्पीडी डेटा ट्रांसमिशन देता है रजिस्टर्स। इज दैट ओके? यस मैम। ओके, सो बेसिकली अगर हम बोलने जाए तो रजिस्टर्स यहाँ पे क्या हो गया, इट विल वर्क्स एज एन इंटरमीडिएटर इन बिटवीन आर मेन मेमोरी एंड आर ALU। इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएटर की तरह हमारा रजिस्टर जो है वो वर्क करता है, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आई गेस आपको ये समझ में आया है, श्योर आया है? यस मैम। ओके फाइन। यस ओके, मैम। और ये जो हम यहाँ पे ऐसे जो जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, आप लोग कंफर्टेबल हो इसके साथ में? यस मैम। ओके फाइन, परफेक्ट देन। सो इन नेक्स्ट क्लास, इन कमिंग सेशन हम आगे जाएंगे। अभी हम बहुत ही बेसिक सा जा रहे हैं जिसके साथ में आप कंफर्टेबली हो, एंड अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ओनली। हमारे फर्स्ट यूनिट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया है। सो फॉर अ डे वी आर कीपिंग टिल दिस, in the next session we are going to move ahead. Is that okay? किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, if anyone want to take. Okay, Then okay fine. So with this I'm going to wind up the class for a day, and have a lovely day. Hope you enjoyed it. નેક્સ્ટ લેક્ચર નથી ને મેમ?